Okay, now we start the program. First of all, I would like to welcome all participants for joining this webinar. We also welcome my guest and speaker, Dr. Ravi Shankar from Paras Hospital, Patna. Now I would like to request Dr. Ravi Shankar sir. Now start the webinar. Please, Dr. Ravi Shankar sir. सर सुन पा रहे हैं? Are you listening me, sir? Hello, am I audible? Yes, sir. Please start the webinar. Yeah, am I audible? Yes, yes, Hello, sir. am I audible? Okay, ठीक है. Good evening to everyone. I am Dr. Ravi Shankar, consultant spine and orthopedics, Paras HMRI Hospital, Patna. Today, we are going to discuss something about e-learning, the related spine complications and remedies. Kunal ji? Yeah. स्क्रीन नहीं मूव कर रही यार. कुणाल जी स्क्रीन ये नहीं हो रहा है, मूव कर रहा है. सम स्क्रीन नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं आ रही है? किस मोड में रखा है? नहीं तो ठीक है, इसी मोड में प्रिंट करें ना. ठीक है. या So first, we'd like to discuss about something about human evolution. We can see our human evolution started from a crouch posture. We gradually became erect, and in the present computer area, we have gone again back to the same crouch or stooped posture as we can see in the figure, both including the men who are using laptops or computers and even the females. So this is the computer era during which we have gone back into the same era of the age from which we started initially. First, I would like to discuss what are the complications that we face in our day-to-day life related to this e-learning. What are the common complaints that the patients have? The very first complaint the patient has is the neck pain. Patient very often comes with the complaints of neck region pain, that is the cervical spine region pain. Second is the mid back pain, that is the dorsal or the thoracic spine region pain, which we can see in the figure. And also patient comes with low back pain, that is lower back pain, which is the lumbosacral spine region. And patient very often comes with the pain radiating to either upper limb or the lower limbs associated with tingling, numbness sensation. So what would be the today's motive of talk? The today's aims and objective would be learning of good posture and balance for a good spine health. Low back pain is the second most common cause of ambulatory visit to a clinician. It is the second most common cause that patient comes to us. 84% of individuals have back pain at some point of
their life, and most common and most expensive cause of work related disability. So it is either work related neck pain or work related back pain, and it definitely affects your quality of life whether you are in office or at home, even at home. Now we'd discuss briefly about anatomy of the spine. Anatomy of the spine, a brief discussion about it. The anatomy of the spine is not as simple as we see from either behind or side or front. So it has got a complex structure. It comprises of 33 vertebrae, 31 pairs of spinal nerves, 23 discs, 139 joints, and there are various regions in the spine, which are cervical spine, that is the neck region, thoracic spine, which is the mid-back region, and the lower spine, that is lumbar spine, which is the lowermost one, including the sacrum and the pelvis. So this is the brief anatomy. सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग सर. Lordotic. हेलो सर. Yeah, hello. सर हेलो. थोड़ा सर थोड़ा हिंदी में सर थोड़ा बताइए सर, ताकि हम समझ सके, अच्छी तरह से समझ सकें सर. पूरा ठीक है. नो प्रॉब्लम. अच्छा, ये थी हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसकी ब्रीफ एनाटॉमी, ठीक है, और उसका इंग्लिश नेम्स है, जो भी है रीजन को एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी दिया गया है जो यहाँ पे हमने दिखाया है. अब हमें ब्रीफली ये समझना है कि बचपन जब हम जन्म लेते हैं उस समय जो कर्वेचर होती है और बाद में जो कर्वेचर आता है, दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों अलग होते हैं. एक जो जब जन्म लेते हैं उस समय जो कर्वेचर टोटली आगे की तरफ झुका होता है, जिसको कहते हैं काइफोटिक कर्वेचर, जो कि हमें थोरैसिक स्पाइन जो लिखा है उस रीजन में दिख रहा है. और दो रीजन जो कि सर्वाइकल रीजन है, नेक का रीजन है, और कमर के नीचे वाले हिस्से का रीजन है वो लंबर स्पाइन है, उसमें ये कर्वेचर पीछे की तरफ रहती है, ये आगे की तरफ नहीं रहती है, इनमें पीछे की तरफ रहती है. ये जो दो कर्वेचर है, नेक का और लोअर बैक का, ये कर्वेचर बाद में आता है. नेक का 6 महीने के आसपास आता है और लोअर बैक का लगभग 12 महीने के आसपास आता है जन्म के बाद. तो वही इसमें दिखाया है. लॉर्डोटिक कर्व्स ऑफ स्पाइन एंड सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन आर एक्वायर्ड लेटर इन लाइफ. वो 6 महीने और फिर 12 महीने में आते हैं. ये स्लाइड है जिसमें हमने दिखाया है कि डिफरेंट अलग अलग रीजन क्या क्या होते हैं स्पाइन के, जो कॉमनली हम लोग डील करते हैं. जब नेक पेन बोलते हैं, गर्दन में दर्द बोलते हैं, वो सर्वाइकल स्पाइन एरिया होती है. नीचे में उसके थोरैसिक स्पाइन, उसके नीचे लंबर स्पाइन, और कर्वेचर दिखा है. पीछे की तरफ जो कर्वेचर है वो लॉर्डोटिक है, आगे की तरफ काइफोटिक कर्वेचर है, और फिर पीछे की तरफ है वो लॉर्डोटिक कर्वेचर है, जिसको यहाँ स्लाइड्स में रीजन एंड कर्व्स ऑफ द स्पाइन में डिस्क्राइब किया गया है. ये फंक्शनल एनाटॉमी, फंक्शनल स्पाइनल यूनिट दिखाई गई है एक, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि कैसे बोनी जो स्पाइन है, जो बोनी स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम जिसे कहते हैं, उसके अंदर होती है. भीतर में जो कैनाल होती है उसमें होती है, और साथ साथ एक नर्व रूट भी जा रही है, साथ साथ गादी भी है नीचे में, जिसको डिस्क कहते हैं, गादी को डिस्क भी कहते हैं. ये एक स्लाइड है जिसमें ये दिखाया गया है कि नॉर्मल आप जो स्पाइनल कॉर्ड जाती है वो कैनाल कैसा रहता है, और जो स्टेनोटिक कैनाल जो कि हम अक्सर सुनते हैं अपने डॉक्टर साहब को बोलते हुए कि नहीं इनको लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, यूजुअली ओल्ड एज पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है. पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि ऐसे ऐसे दोनों पैरों में चलते वक्त दर्द होती है, तो बाद में उन्हें बोला जाता है आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस है. तो स्टेनोसिस कैसा दिखता है वो ब्रीफली समझाया गया इस स्लाइड में. वो नैरो हो गया, पतला हो गया, इसमें चौड़ा है अंदर जो जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जाती है. ये एक स्लाइड है जिसमें पैथोलॉजी ब्रीफली दिखाया गया है, जिसमें नर्व रूट कैसा दिखता है, वो पिंच होता है तो कैसा दिखता है, और पिंच होने के बाद जो दर्द जाती है पैरों में तो वही दिखाया गया, जिसको रेडिएशन ऑफ पेन टू लेग या फीट कहते हैं. पेन रेडिएट होती है. ये एक स्लाइड है जिसमें मैंने नॉर्मल डिस्क भी दिखाया है और डीजेनरेटेड डिस्क, जो आप अक्सर सुना करते होंगे, ये कैसा, जो कि उम्र के हिसाब से होती है, ये कैसा दिखता है वो दिखाया गया है डायग्राम में. नॉर्मल डिस्क, डीजेनरेटेड डिस्क, बल्जिंग डिस्क, पीछे छोटा सा एक बलून की तरह दिख रहा है वो बल्जिंग डिस्क कहते हैं, और हर्निएटेड डिस्क उससे
बड़ी जो निकल के आई है पूरी बाहर की तरफ वो हर्निएटेड डिस्क है, और बीच में थिनिंग ऑफ डिस्क भी दिखाई गई है जिसमें डिस्क पतला हो गया है, नॉर्मल हाइट का नहीं है। और साथ साथ ऑस्टियोफाइट्स हम सुनते होंगे, जो डिस्क के इन एंड अराउंड मार्जिन ऑस्टियोफाइट्स, ये डिस्क ऑस्टियोफाइट्स दिख रहे हैं जो बोनी प्रोजेक्शन है छोटे छोटे। अक्सर पेशेंट का कंप्लेन रहता है या तो बैक में कहीं, स्पाइन में कहीं पेन है बैक में, या फिर पेन पैरों में कहीं जाता है, वही यहाँ दिखाया गया है। अक्सर हम सियाटिका वर्ड सुनते हैं, सियाटिका कुछ नहीं, एक सियाटिक नर्व है, उसकी जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको सियाटिका कहते हैं। उसके एलोंग, उसके कोर्स के एलोंग जो पेन जाती है उसको कहते हैं सियाटिका। ये सियाटिक नर्व जो इन्फ्लेम्ड है रेड कलर से दिखाया गया है दाहिने की तरफ। हिस्ट्री, पेशेंट क्या क्या हिस्ट्री देते हैं हमारे पास आते हैं तो मैकेनिकल बैक पेन, मूवमेंट से पेन हो रही है, या फिर इन्फ्लेमेटरी या फिर नॉन मैकेनिकल जैसे इन्फ्लेमेटरी या पैथोलॉजिकल पेन कहते हैं, जो बिना मूवमेंट के भी इन्फ्लेमेटरी पेन रहती है। नाइट पेन हिस्ट्री देते हैं। ये पैरों में जा रही है, अक्सर बोलते हैं कि हम पलथी मार के नहीं बैठ पाते या फर्श पे नहीं बैठ पाते या लंबी दूरी नहीं चल पाते, ये प्राय हिस्ट्री देते हैं। एक और एंटिटी मैं यहाँ जस्ट ब्रीफली दिखाना चाहूंगा, ये कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम अक्सर सुनने को मिलती है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ये कुछ नहीं होते, नीचे में जो लोअर लंबर स्पाइन में जो रूट्स सारे जाते हैं, बंच ऑफ रूट्स, उसी को कॉर्डा इक्विना कहते हैं, जो कि फिगर में देख सकते हैं। और इनकी क्या क्या जो सिम्टम्स होती हैं वो देखा गया। पेरी एनल एनेस्थीसिया, बॉयल बैडर के एरिया में जो रहती है वहाँ पे पेरियानल एनेस्थीसिया होती है। और फ्लैसिड पैरालिसिस, मतलब पैरों में भी वीकनेस आने शुरू हो जाते हैं। लॉस ऑफ बॉवेल ब्लैडर कंट्रोल, मतलब पेशाब और मोशन पे कंट्रोल नहीं रहता है, बेड पे हो जाती है या फिर रास्ते में ही हो जाती है। ये ब्रीफली मैंने दिखाने की कोशिश की है। स्पाइनल वर्सेस नॉन स्पाइनल, ये इसलिए दिखाया गया है कि बहुत सारे कमर की दर्द, लोअर बैक पेन स्पाइन के कारण ही नहीं होते, वो अदर देन स्पाइन, वो स्पाइन के अलावे भी कुछ कारण होते हैं जो उनकी तरफ लिमिट करते हैं, और नॉन स्पाइनल पेन होता है वो स्पाइन से नहीं होता है। वो कैसे हो सकते हैं? पेल्विक ऑर्गन के डिजीज के कारण, किडनी के डिजीज के कारण, पेट के कारण, पैंक्रियास के कारण हो सकती है, गॉल ब्लैडर के कारण हो सकती है, पेट में कोई अल्सर हो गया हो, हार्ट के कारण हो सकती है, लंग के कारण हो सकती है। अक्सर ये टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलता है, लो बैक पेन, acute, chronic, subacute. Hello, sir, your voice is not clear. Yeah, now audible. Hello. Hello. Yes, Yes, Yeah. sir. So हाँ, हेलो। हाँ, तो एक्यूट कब कहते हैं? जब 6 हफ्ते से कम रहती है तब एक्यूट कहते हैं। सब एक्यूट कब कहते हैं? जब 6 से 12 हफ्ते। क्रोनिक कब कहते हैं? जब 12 हफ्ते से ज्यादा है पेन, तब उसको क्रोनिक कहते हैं। और कुछ कुछ चीजें जो लंबे समय से रहती हैं, बीच में गायब हो जाती हैं, फिर से आती हैं, एक्यूट ऑन क्रोनिक। और रिकरेंट कब कहते हैं? जब 6 महीने का गैप होता है, जो सिम्टम फ्री इंटरवल होती है, जहाँ तकलीफ, जिस बीच में तकलीफ नहीं होती है। एर्गोनॉमिक्स, ये चीजें हैं जो कि वर्क से रिलेटेड पेश है, जब हमें ऑफिस में काम करते हैं या फिर जहाँ भी स्कूल, अदर वर्क प्लेस जहाँ पे काम करते हैं, उससे रिलेटेड भी चीजें हमारे स्पाइन को इफेक्ट करती हैं। हमारे नेक पेन होता है, बैक पेन होता है उसके कारण। एक तो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है, कारण क्या क्या है? वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, मेंटल डिमांड्स, फिजिकल कैपेबिलिटीज, टास्क डिमांड्स, ये सारी चीजें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं। वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर इसको कहते हैं, जो कि एक डेफिनेट फिक्स कंस्टेंट पोजीशन के कारण होते हैं। रिपीटेड मूवमेंट, एक ही चीज, एक ही मूवमेंट बार बार करते हैं, जैसे हाथों का मूवमेंट बार बार हो रहा है, हैंड रिस्ट का यूज ज्यादा हो रहा है, या फिर इनसफिशिएंट रिकवरी बिटवीन द मूवमेंट, ज्यादा हम रिकवरी टाइम नहीं देते, लगातार काम करते रहते, इन सब के कारण हमें ये पेन सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ता है, अगर हमें इनसे अगर हम चाहते हैं कि नेक पेन या बैक पेन हमें नहीं हो। सिटिंग, what chair can make a lot of difference.
जो कुर्सी है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुर्सी अगर सही नहीं है, अगर कुर्सी सही नहीं है तो हमें हमारे बैक पेन का कारण वो खुद अकेले हो सकती है। इसलिए हमें चेयर का जो सिलेक्शन है वो ध्यान दे के करना चाहिए। पहला, हाइट डिफरेंस। जो चेयर की हाइट है वो हर एक इंडिविजुअल के स्पेसिफिक होना चाहिए। हर की हाइट बराबर नहीं होती, किसी की ज़्यादा लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होना चाहिए। और हमें उसी के अनुसार से अपने चाहिए। ज्यादा ऊंची हो, ज्यादा नियर में बैक तो वो होनी चाहिए, प्लस आर्मरेस्ट होनी चाहिए, प्लस हेडरेस्ट भी होनी चाहिए। और ज्यादा ऊंची होने पे हमें एक नीचे फुटरेस्ट भी लेना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि हेडरेस्ट जो है वो दिखाया गया है, प्लस आर्मरेस्ट और बैकरेस्ट है वो भी दिखाई गई है। पोस्चर टू कंपनसेट फॉर रॉन्ग साइज चेयर। अगर हम गलत साइज की चेयर ले लेते हैं तो कुछ कुछ पोस्चर हैं जो गलत हम अपना के उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि पोस्चर गलत होती है, जिसके कारण हमारी बैक प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। सिटिंग विथ अ फुट टक्ड अंडर रिफ्यू, जैसा यहाँ फिगर में दिखाया गया है, या फिर सिटिंग ऑन द एज ऑफ द सीट टू लेट योर फीट touch the floor, sitting with your feet dangling to be able to lean against seat for support. How to sit करेक्ट मेथड, कैसे हम बैठें, इसमें ये दिखाया गया है। स्टैंड क्लोज टू चेयर, फेसिंग अवे फ्रॉम चेयर, चेयर के बिल्कुल पास जाना चाहिए, हमारा फेस अपोजिट साइड होता है, और बिल्कुल चेयर को टच करना चाहिए, नीज ऑलमोस्ट टचिंग, घुटने टच होने चाहिए। उसके बाद हमें उस पर नीचे बैठने की कोशिश करनी चाहिए। लोअर योरसेल्फ ऑन द सीट बाय बेंडिंग एट द हिप्स एंड नीज, कीपिंग योर ट्रंक एंड हेड स्ट्रेट। जो बेंडिंग की प्रक्रिया, जो मोड़ने की प्रक्रिया स्पाइन पे नहीं होना चाहिए, वो घुटने और हिप पे होना चाहिए। एंड सिट योरसेल्फ विथ योर बटक्स टचिंग द बैक ऑफ द चेयर, बैक भी पूरी तरह से वेल सपोर्टेड होना, टच में होना चाहिए आपके जो बैक सपोर्ट है उसके। यहाँ भी बैठने का जो करेक्ट पोस्चर है वो दिखाया गया है, और कुछ कुछ जो नॉट दिस करके लिखे गए ये सब गलत पोस्चर है। जो सही पोस्चर है वो दिखाया गया। अगर छोटी पड़ती है तो हमें एक फुट स्टूल भी ले लेना चाहिए। आर यू सिटिंग कंफर्टेबली, ये जो पोस्चर दिखाए गए हैं ये सब गलत, दोनों पोस्चर गलत हैं, ये सही पोस्चर बैठने का नहीं है। सिटिंग ऑन ए सॉफ्ट सैगिंग चेयर कैन स्ट्रेस योर बैक, इसके कारण स्पाइन में पेन स्टार्ट हो सकती है। लेफ्ट साइड है जो पोस्चर्स है, जो बैठने का तरीका है वो सही है, राइट साइड वाला गलत है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक एक इंडिविजुअल पोजीशन को हमने कंपेयर करके दिखाया है लेफ्ट और राइट के बीच में। ये गलत पोजीशन है बैठने के, जो कि हम डे टू डे लाइफ में इसे अपनाते रहते हैं, ये गलत पोजीशन है। ट्विस्ट भी नहीं करना चाहिए हमें, ये सही पोजीशन है। चूज अ चेयर दैट इज करेक्ट हाइट, जो कुर्सी है उसकी हाइट भी करेक्ट होनी चाहिए। सिट इन अ चेयर विथ प्रॉपर सपोर्ट फॉर योर लोअर बैक। चूज अ चेयर विथ आर्मरेस्ट, नॉट टू हाई नॉट टू लो। सो चेयर कुर्सी की हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेफ्ट साइड जो दिखाई गई है वो गलत है, और राइट साइड जो दिखाई गई है वो सही है। इसमें देख सकते हैं कि दोनों में कंपेयर करके हम देख सकते हैं बैक वेल सपोर्टेड था उसमें। ये भी एक गलत, डे टू डे लाइफ में हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ये भी एक गलत पोस्चर हम अपनाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इज सिटिंग टाइम एसोसिएटेड विथ स्पाइनल पेन, ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना समय बैठना चाहिए चेयर में, और क्या बैठने का टाइम स्पाइन के पेन से एसोसिएटेड होता है। तो उनके लिए एक जो मेडिकल रिसर्च आर्टिकल है वो मैंने देखा है। सिटिंग टाइम इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद लो बैक पेन इंटेंसिटी अमंग ब्लू कॉलर वर्कर। 15 से 20 मिनट के बाद हमें ब्रेक लेना चाहिए हर सिटिंग पोस्चर, जो भी पोस्चर में बैठे हैं। स्टैंडिंग, राइट साइड जो दिखाई गई है वो बिल्कुल सही पोस्चर है, और जो लेफ्ट साइड 4 जो स्लाइड जो फिगर हैं वो गलत हैं। स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग पोस्चर है, और इसमें एक में देख सकते हैं कि फुट स्टूल यूज किया जो कि करेक्ट है, और जो दिस करके दिखाई गई है वो सही है, बाकी जो नॉट दिस है वो रॉन्ग पोस्चर है। हर
इंसान अलग होता है, एवरीवन इज डिफरेंट। सो जो भी चेयर्स यूज करते हैं वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होनी चाहिए, हर इंसान के लिए अलग होना चाहिए। ये कॉमन ज्यादातर लोग पूछते हैं कि कौन सा बेटर है, फ्लैट शूज बेटर है या हाई हील शूज बेटर है। तो यहाँ दिखाया गया है कि फ्लैट शूज बेटर होते हैं हाई हील्स के। फ्लैट शूज हमेशा बेटर होते हैं, उसके स्पाइन के प्रॉब्लम्स, उसके स्पाइन के पेन नहीं होते हैं। जबकि अगर हाई हील शूज यूज करते हैं हम, तो लॉन्ग टर्म यूज में हमारे बैक के पेन स्टार्ट हो सकते हैं। लॉन्ग कंप्यूटर वर्किंग आवर्स, अगर हम लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमें सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों स्टेशंस यूज करने चाहिए, सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों। बैठते वक्त क्या स्क्रीन की डिस्टेंस होनी चाहिए, 40 to 75 सेंटीमीटर्स रिकमेंडेड है। और उसकी एंगुलेशन कितनी होनी चाहिए, आई लेवल से लगभग 10 to 20 डिग्री, तो वही इसमें दिखाया गया है। और बैक जब भी बैठे हैं तो हमारा एल्बो 90 डिग्री ऑलमोस्ट बेंड होना चाहिए, हिप और नी भी 90 डिग्री। सिटिंग वर्क स्टेशन, सेम चीज को यहाँ रिपीट किया गया है। जो टिल्ट है 10 to 15 डिग्री होनी चाहिए, एल्बो फ्लेक्स होना चाहिए, हिप फ्लेक्स होना चाहिए, नी भी फ्लेक्स होना चाहिए 90 to 100। और डिस्टेंस स्क्रीन के अराउंड 40 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 600 मिलीमीटर के इन एंड अराउंड ऑफ। जब बैठते हैं तो हम फुटरेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फुटरेस्ट में भी यूज आफ्टर टू एडजस्ट फॉर अ हायर टेबल, अगर टेबल हाइट ज़्यादा है तो हमें एक फुटरेस्ट का भी इस्तेमाल करना चाहिए, फिगर में भी दिखाया गया है यहाँ पे। ये भी एक गलत पोस्चर है जो कि प्रिंट जब करते हैं तो हम अपनाते हैं, तो ये गलत पोस्चर है प्रिंटिंग का। जब खड़े रहते हैं तब का कैसा पोस्चर होना चाहिए वर्किंग स्टेशन पे, ये इसमें दिखाया गया है। स्क्रीन टिल्ट 10 से 20 डिग्री होनी चाहिए, जो एल्बोज है 90 डिग्री बेंट होना चाहिए। मे ऐड अ फुटरेस्ट की अगर जरूरत पड़ती है तो एक फुटरेस्ट भी इस्तेमाल करना चाहिए। स्टैंडिंग, जब खड़े रहते हैं उस समय का दिया है, फुटरेस्ट यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट मैट यूज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। केयर एट होम आज के डेट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं ज़्यादातर, और जो घर पे ही रह के हम में से मैक्सिमम लोग घर पे रह के ही काम कर रहे हैं। तो घर पे कैसे पोस्चर्स ऑक्यूपाई करने चाहिए। बैक केयर इन द बेडरूम, हमारी 1/3 जो है लाइफ 24 आवर्स में 1/3 बेड में ही जाती है। ये है सही तरीका बेड में जाने का, पहले सीधा बैठें, फिर साइड टर्न करें और फिर लेट जाएं। नेक के नीचे एक पिलो होना चाहिए, उसी तरह नी के नीचे भी एक पिलो ले सकते हैं। लेफ्ट साइड में दिखाई गई ये सही तरीका है, राइट साइड में दिखाई गई है वो गलत तरीका है। एक में देख रहे हैं कि डबल पिलो यूज किया है, हाइट ज्यादा है, और दूसरे में ट्विस्टिंग मूवमेंट है, ट्विस्ट किया है उन्होंने। ये भी सब गलत पोस्चर है अब जो हम अपनाते हैं डे टू डे लाइफ में, ये गलत पोस्चर, इसके कारण हमारा स्पाइन में तकलीफ हो सकती है हमारे। बेड, इज योर बेड रेडी फॉर रिटायरमेंट, आंसर इज यस। कब, अगर 8-10 साल से ज़्यादा हो गई हो पुरानी, अगर मैट्रेस बिल्कुल फ्लॉपी, अनइवन, लंपी, मतलब बिल्कुल वो दब जाती हो तब, वो फर्म नहीं हो, बिल्कुल दब जाती हो तब। यू कैन फील द स्प्रिंग इजीली, हम आराम से उसे स्प्रिंगी एक्शन, फॉर्मनेस ना फील करके स्प्रिंगी एक्शन में फील हो। डोंट पुट अ न्यू मैट्रेस ऑन एन ओल्ड बेस, जो मैट्रेस के नीचे वाला बेस है वो ओल्ड पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैट्रेस का जो शेप है वो बेस के शेप में आ जाएगी। एंड फाइंड आउट राइट डिग्री ऑफ फॉर्मनेस, इंश्योर द बेड इज हाई इनफ टू गेट ऑन एंड ऑफ इजीली। बेड की हाइट भी इंडिविजुअल स्पेसिफिक होनी चाहिए, और जिससे कि हम आसानी से ऊपर जा सकें और नीचे आ सकें। एंड टू मेक द बेड विदाउट बेंडिंग, बिना बेंड के, बिना स्पाइन पे बेंड किए हुए। तो जो भी बेंडिंग एक्शन हो वो घुटने पे हो और हिप रीजन पे हो। इन द बाथरूम यूज अ मग ऑफ वाटर टू क्लीन योर टीथ टू अवॉइड बेंडिंग, तो फिर वही चीज बताई गई है कि स्पाइन लेवल पे बेंडिंग नहीं होना चाहिए। बेटर है कि मैं मग लेके और चीजों को अपने पास लाए। व्हेन यू हैव बैक पेन, शावर में भी कंफर्टेबल, शावर ज्यादा कंफर्टेबल होती है rather than using a bucket mug. Washing your hair in the shower avoids bending over a sink. तो अगर शावर यूज करते हैं हम, बेंड
जो करने की प्रक्रिया है वो अवॉइड हो जाती है। तो हम स्पाइन में बेंड हमें नहीं करना चाहिए और हमें बेटर है कि शावर यूज करें। जब हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं तब कैसा पोस्चर होना चाहिए वो इसमें दिखाया गया। डोंट लीन ओवर द सिंक, आगे झुकना नहीं चाहिए। बेंड एंड रेस्ट योर नीज अगेंस्ट द कैबिनेट और पुट वन फुट अप ऑन द स्टूल। अगर हमें लगे तो एक फुट रेस्ट भी ले लेना चाहिए और फुट रेस्ट भी यूज करना चाहिए। किचन में भी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो भी है चीज़ें में यूज़ करते हैं किचन में वो भी एक पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट हाइट पर रखना चाहिए। रिमेंबर टू ऑलवेज बेंड योर नीज नॉट योर बैक। बैक बेंडिंग एक्शन किचन में भी हमारे घुटने पे होना चाहिए, हिप पे होना चाहिए, स्पाइन में नहीं होना चाहिए। व्हेन रीचिंग डाउन टू यूज एन ओवन, अगर ओवन यूज करते हैं या फिर फ्रिज यूज करते हैं या डिश वॉशर कुछ भी यूज करते हैं, ट्राई नीलिंग ऑन ए कुशन टू टेक वॉशिंग आउट ऑफ द वॉशिंग मशीन व्हेन हैंगिंग आउट योर वॉशिंग। जो भी है, जो हाइट है हैंग करने कपड़े सुखाने की वो भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वहां भी हमारा स्पाइन बेंड नहीं होना चाहिए। थिंक अबाउट व्हेन यू स्टोर फूड पॉट्स एंड पैन, जो भी है जो स्टोर करते हैं वो भी एक अप्रोप्रिएट हाइट पे होना चाहिए जिसे वापस निकालते हुए हमें बेंड नहीं करना पड़े। And stand the washing a bowel on a draining board so you don't need to lean over the washer। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वॉशिंग मशीन भी यूज़ करते हैं, उसकी भी हाइट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए जिससे हमें बेंड नहीं करना पड़े और अंदर तक नहीं घुसना पड़े, जिससे स्पाइन बेंडिंग एक्शन अवॉइड हो सके और स्पाइन का प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सके। वैक्यूम जब करते हैं उस समय भी जब हम वैक्यूम करते हैं तो वो भी एक अप्रोप्रिएट हाइट का वैक्यूम मशीन हो लेना चाहिए। शिफ्ट योर वेट बैक एंड फोर्थ फ्रॉम वन फुट टू अनदर, एक पैर से दूसरे पैर पे लेना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट यू डोंट बेंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेरी फार, आगे पीछे बेंडिंग एक्शन हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे स्ट्रेन पड़ता है बैक पे और पेन होता है। बेंड योर नीज एज यू पुश एंड पुल द ब्रूम और वैक्यूम, जो भी बेंडिंग एक्शन होती है घुटने पे होना चाहिए जब हम वैक्यूमिंग कर रहे हो तब। हाउस वर्क, पेस योरसेल्फ, डोंट डू ऑल द हाउस वर्क इन अ डे, सारे घर के काम एक दिन में नहीं करने चाहिए। नील बाय द बेड टू क्लीन इट रादर देन बेंडिंग ओवर, जो भी है काम करने के लिए हमें बेंडिंग अवॉइड करनी चाहिए। एडजस्ट द आयरनिंग बोर्ड, में आयरन करते रहते हैं घर में कपड़ों का तो वो भी एक पर्टिकुलर हाइट पे लेना चाहिए और आगे का स्टूल पोस्चर अवॉइड करना चाहिए। गार्डन में भी हाउ टू take care back care in the garden, avoiding back pain, warm up before starting and pace yourself, know your capabilities। पहले हमें कोई भी काम करने से पहले थोड़ा वार्म अप हो जाना चाहिए और जो भी है स्टूल वो अच्छे शार्प स्टूल्स होने चाहिए और मेक लोड मैनेजेबल, बैग ऑफ रबिश लोड इन द wheelbarrow spade full of soil। लो मेंटेनेंस, ये एक कॉन्सेप्ट है, लो मेंटेनेंस गार्डनिंग, ये हमें बेटर फॉलो करना चाहिए। नैरो फ्लावर्स एंड वेजिटेबल बेड्स आर इजियर टू रीच, तो हमें लो मेंटेनेंस गार्डनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। रेशियो बेड, उनकी हाइट ऊपर होनी चाहिए एंड वर्क बेंचेस रिड्यूस बेंडिंग, जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ बेंडिंग एक्शन अवॉइड करना चाहिए। ट्रीज और एंड लॉन्स क्रिएट अ लॉट ऑफ वर्क, जो पेड़ लगाते हैं लॉन्स लगाते हैं उसके कारण हमारा काम बढ़ जाता है और ये बेंडिंग एक्शन ज़्यादा होता है, इसके कारण हमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। गार्डन इक्विपमेंट, चूज लॉन्ग हैंड, जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं गार्डन में बागीचे में जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो भी हमें ध्यान देकर खरीदना चाहिए। लॉन्ग हैंडल वाली चीजें खरीदनी चाहिए। नीलिंग मैट स्टूल टू रिड्यूस बेंडिंग एंड रीचिंग, चूज लाइट वेट स्टूल टू रिड्यूस द लोड, ज़्यादा हैवी सामान यूज नहीं करना चाहिए, ज़्यादा हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करने चाहिए। चूज द राइट इक्विपमेंट फॉर द जॉब, अ लॉन मोवर द राइट साइज फॉर योर लॉन। ट्रैवल, जब हम ट्रैवल करते हैं उस समय भी हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ट्रैवल कहीं भी कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं, अब्रॉड कर सकते हैं। रोड ट्रिप ज़्यादा कॉमन है, रोड ट्रिप में क्या क्या ध्यान लेना चाहिए। बैक केयर इन द कार, लाइक ऑल सीट्स अ कार सीट शुड प्रोवाइड फर्म सपोर्ट टू द बैक, जो कार की सीट है एक फर्म सपोर्ट देना चाहिए बैक को। यूज कुशन इफ सीट इज टू डीप, अगर ज़्यादा डीप है तो क्वेश्चन नीचे में यूज करना चाहिए। अवॉइड ट्विस्टिंग व्हेन गेटिंग इन एंड आउट ऑफ कार, ट्विस्टिंग मूवमेंट यहाँ भी अवॉइड करना चाहिए। सिट डाउन फर्स्ट एंड देन स्विंग योर लेग्स in together, break your journey frequently, walk around a space to avoid getting stiff due to sitting
still for lengthening period of time. ये बैठने का तरीका है कार में. कार में जब अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं सेम सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए. पहले साइड से बैठ जाएं, फिर पैर को अंदर ले जाएं, फिर सीधा हो जाएं और रिवर्स सीक्वेंस में बाहर आना चाहिए. When getting something out of the trunk, जब ट्रंक मोस्टली घरों में ट्रंक यूज होती है तो हमें वहाँ पे बम्पर सपोर्ट भी यूज करना चाहिए. सो बम्पर सपोर्ट वाली जो यूज के कारण बेंडिंग एक्शन जो है घुटने पे हो रही है, हिप पे हो रही है, स्पाइन बेंड कम होता है तो स्पाइन की प्रॉब्लम कम होती है. केयर ड्यूरिंग वेट लिफ्टिंग और कैरिंग ऑब्जेक्ट्स, तो जो सामान कैरी करते हैं उसके समय क्या क्या हमें केयर लेना चाहिए. सामान का वजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. खैर बॉडी बिल्डिंग में जो रहते हैं वो ज़्यादा वेट लिफ्ट, वो प्रोफेशनल वेट लिफ्टर्स होते हैं, अपनी बॉडी की साइज भी उसी तरह से बढ़ाते हैं और वो यूज़ करते हैं. लेकिन नॉर्मली डे टू डे लाइफ में 15 से 20% बॉडी वेट का ही सामान उठाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. आगे मैंने एक पेपर में पब्लिश पेपर जो मेडिकल लिटरेचर है उसमें कवर भी किया उसे. प्रिंसिपल्स फॉर मैनुअल हैंडलिंग फॉर वर्कर्स, ये जो बताया गया है ये गलत तरीका है वजन उठाने का. फीट क्लोज, स्मॉल बेस एरिया, स्टेबल पोजीशन, दोनों पैर बिल्कुल पास है, ये गलत पोजीशन है. ये सही है, दूसरी वाली जो है ये सही है. फीट अपार्ट, पैर दोनों दूर हैं, लार्जर बेस, मोर स्टेबल पोजीशन, ये जो है ये भी गलत तरीका है. लोड अवे फ्रॉम द बॉडी, जो लोड है शरीर से दूर है. वेट इन फ्रंट ऑफ बेस, पोस्चर लेस स्टेबल एंड ग्रेटर एफर्ट रिक्वायर्ड, ये गलत तरीका है. ये सही तरीका है, सामान को बिल्कुल पास रखा है. लोड हेल्ड क्लोज टू द बॉडी, वेट ओवर द बेस, मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होता है ये. रिक्वायर्स लेस एफर्ट टू लिफ्ट द लोड, इसमें जो एफर्ट लगती है वो कम लगती है. ये भी ट्विस्टिंग मूवमेंट है, ये भी गलत है. ऐसे ट्विस्ट करके नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल पास में ला के लाना चाहिए. लोड इन फ्रंट ऑफ द ऑपरेटर, ट्रंक स्ट्रेट, सेफर पोजीशन, ये बिल्कुल सेफर पोजीशन है. क्लासिक लिफ्ट कैसे उठाना चाहिए, जो वजन है बिल्कुल पास में लाके बेंड हमें घुटना और हिप रीजन पे करना चाहिए, स्पाइन पे नहीं करना चाहिए आगे की तरफ बेंड. स्टेबल बेस, फीट अपार्ट एंड फर्मली पोजीशन, कीप योर बैक स्ट्रेट एंड बेंड योर नीज, कीप द लोड क्लोज टू योर बॉडी, लोड को बिल्कुल बॉडी के पास रखना चाहिए तब उठाना चाहिए. ये क्लासिक लिफ्ट है जो कि हाथ से ग्रिप किया गया है अच्छी तरह से. हेड ट्रंक सीधा है, स्ट्रेट योर नी, उसके बाद हमें घुटने और हिप को सीधा करना है तभी हम उसको उठा सकते हैं. स्ट्रेट योर नीज टू स्टैंड अप, यूजिंग योर लेग मसल्स टू लिफ्ट, कीपिंग द लोड क्लोज टू योर बॉडी, ये क्लासिक लिफ्ट है. कीप द लोड क्लोज टू द बॉडी, इंश्योर यू हैव अ क्लियर व्यू ऑफ वेयर यू आर गोइंग. जब भी मूव करना चाहिए आगे की तरफ, सामान उठाकर पीछे की तरफ मूव करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप देख पाते हैं कि आगे क्या है, रास्ता हमें दिखता है और वजन को आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं. ये ज़्यादातर उनके लिए है जो चाइल्ड बियरिंग एज में है, बच्चे हैं, तो बच्चे को कैसे उठाएं. यहाँ भी दिखाई गई है कि बच्चे को बिल्कुल बॉडी के पास लाके और हमें स्पाइन और हेड को बिना बेंड किए हुए जो बेंडिंग एक्शन है वो नी और हिप पे लाके उसको उठाना चाहिए. पुशिंग ऑब्जेक्ट, so pushing is always better than pulling. So pushing is always better than pulling. It is better to push a large object than to pull it towards you. So it's too heavy to push without having to strain, get help. तो व्हेन पुलिंग और पुशिंग कीप योर बैक स्ट्रेट, ये करेक्ट पोस्चर है. जो हम पुश भी कर रहे हैं उसमें ये करेक्ट पोस्चर है, बिल्कुल बैक और जो हेड है वो स्ट्रेट है. ऑल्दो नॉट नेसेसरी वर्टिकल बेंड एट हिप्स एंड नी, जो भी बेंडिंग एक्शन हो हिप और नी पे हो. यूजिंग योर लेग रादर देन यूजिंग आर्म और बैक मसल टू मूव द ऑब्जेक्ट. पुशिंग is easier as you can easily see where you are going, हमें रास्ता दिखाई देता है जब हम पुश करते रहते हैं. पुलिंग एक्शन में वो नहीं होता है, इसलिए पुशिंग बेटर है. जब चीज़ें ऊपर से उठाते हैं तब क्या क्या प्रिकॉशन लें, हमें एक स्टूल यूज करना चाहिए, स्टूल और चेयर, और अपने आप को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए. लेफ्ट साइड वाली गलत है, उसमें स्टूल यूज नहीं किया है और एक ही हाथ से निकाल रहे हैं, राइट साइड सही है. जब खांसते भी हैं उस समय भी बेंड योर नीज, पुट वन हैंड on your leg if needed additional support. के हाथ को आगे की तरफ रख सकते हैं.
ही वजन जो भी हम लेकर घूमते हैं, चाहे वो लैपटॉप बैग हो, स्कूल बैग हो, वो कैरी करने का सही तरीका, दोनों समान वेट का वजन दोनों हाथों में लेके चलना ज़्यादा बेटर रहता है। और कोई बैग लेके जा रहे हैं हैंड बैग, तो वो बिल्कुल बॉडी के पास होना ज़्यादा बेटर है। बीच वाला जो है गलत तरीका है, जो कि हम आमतौर पर अपनाते हैं। ये भी गलत तरीका है वजन उठाने का, इसके कारण भी बैक पेन लोगों को होती है। ये भी गलत तरीका है बैग कैरी करने का, लैपटॉप बैग या स्कूल बैग, इसके कारण भी पेन होती है। हाउ मच वेट ऑफ ए बैग, कितना स्कूल का जो बैग है या लैपटॉप बैग है उसका वजन कितना होना चाहिए डे टू डे लाइफ में? उसका आंसर है लेस दैन 10 to 50% ऑफ द बॉडी वेट। एक लिटरेचर यहाँ दिखाई गई है। The recommended weight of school bag is less than 10 to 50% of the body weight. लेफ्ट साइड में जो बैग है वो राइट मतलब करेक्ट है, क्योंकि उसमें एब्डोमिनल स्ट्रैप है, शोल्डर स्ट्रैप के अलावा एब्डोमिनल स्ट्रैप भी जरूरी है। लेफ्ट राइट साइड में जो है, जो रॉन्ग है, उसमें केवल शोल्डर स्ट्रैप है, उसमें एब्डोमिनल स्ट्रैप नहीं है। एक क्लिनिकल एंटिटी है जो अभी डिस्कस किया, एर्गोनॉमिक्स, वर्क रिलेटेड नेक पेन एंड वर्क रिलेटेड लो बैक पेन। तो एक नई एंटिटी आई है, टेंशन नेक सिंड्रोम। ये भी हमारे स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम से है, और इनका मेन कारण है इनकरेक्ट पोस्चर एंड बैलेंस व्हाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर एंड लैपटॉप। कंप्यूटर और लैपटॉप का डे टू डे जो यूज करते हैं उसके गलत पोस्चर के कारण है। स्ट्रेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, और ये जो भी है वर्क रिलेटेड, इसका प्रेजेंटेशन क्या होता है, जो भी है वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ही सिग्निफिकेंट है इसके लिए। सो जेंटलमैन विथ वर्क प्लेस स्ट्रेस, नेक पेन होती है प्लस शोल्डर रीजन पेन होता है, इसका कॉमन प्रेजेंटेशन यही रहती है। इवन जो हम सेल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन, वो भी अगर गलत पोस्चर में यूज करें उसके कारण भी नेक पेन हो सकता है। वो पुराने ज़माने के जो रिसीवर वाले फ़ोन होते थे वो ज़्यादा बेटर थे, प्रेजेंट जो आईफोन है, स्मार्टफोन है, उनकी बदौलत। तो न्यू जेन फोन्स आर ऑल नॉट गुड एज द ओल्ड जेन फोन। द क्लिनिकल एंटिटी से जो चीज़ होती है वो उसको कहते हैं टेंशन नेक सिंड्रोम, या फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी को कहते हैं एंटी Sir, you are not audible. हेलो हेलो Yes, sir. हेलो। Yes, sir. हाँ, जैसे ही हम बेंड करते हैं अपने नेक को, हमारे हेड का वजन नेक पे ज़्यादा बढ़ जाता है, हेड का वजन नेक पे ज़्यादा बढ़ जाता है। मोबाइल यूज़ के दौरान हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो करेक्ट पोस्चर क्या है वो जानना जरूरी है। कुणाल जी ये नहीं हो रहा है, ये स्लाइड चल नहीं रही है, क्या आ रहा है, क्या हुआ? इसी पे नहीं दिक्कत हो रही है, बाकी सब ठीक है। ये आगे कीजिए, नेक्स्ट आगे, ठीक है। इनकरेक्ट टेस्टिंग टेक्निक, ये लेफ्ट साइड वो बिल्कुल इनकरेक्ट टेक्निक है, और जो राइट साइड है वो करेक्ट टेस्टिंग टेक्निक है। स्पाइन हेल्थ रिलेटेड क्वेरी, कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो ऑडियंसेस पब्लिक हमसे पूछती रहती है उसको मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। इज विटामिन डी एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी एज कॉमन एज वी थिंक इट इज, एंड इज इट एसोसिएटेड विद नेक पेन एंड बैक पेन? क्या विटामिन डी और B12 की कमी के कारण शरीर में नेक पेन और बैक पेन हो सकता है? इसका आंसर है यस, उनकी बहुत ही कॉमन है। अगर विटामिन डी और B12 शरीर में कम है उसके कारण नेक पेन भी हो सकता है और बैक पेन भी हो सकता है। ये एक लिटरेचर, जो मेडिकल लिटरेचर है, पब्लिश आर्टिकल है, उसका मैंने रेफरेंस लिया गया है। 70 to 100% डी की डेफिशिएंसी 70 to 100% जनरल पॉपुलेशन में दिखी गई है, और B12 का भी देखा गया है काफ़ी सिग्निफिकेंट। ये एक स्टडी लिया है जिसमें 65% जो थे एग्जीक्यूटिव विद B12 डेफिशिएंसी, 28% जो थे डी की डेफिशिएंसी थे। हाउ मच डेली कैल्शियम फॉर गुड बोन हेल्थ, ये भी ज़्यादातर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना कैल्शियम ले।
तो उसकी एक ओवरव्यू है। एडल्ट के लिए नॉर्मली 100 मिलीग्राम पर डे। अगर उम्र बढ़ती है वो ओवर तो उसके हिसाब से ये बढ़ता है। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वोमेन में भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ज़्यादा उम्र के साथ में 1200 मिलीग्राम, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग है तो 12 से 1400। एग्जैक्ट फिगर यहाँ दिया हुआ है। FNB फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड यूनाइटेड स्टेट्स की ये लिटरेचर है जो यहाँ पे ऐड किया है। फॉर स्लिप डिस्क हाउ मच ट्रैक्शन, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि अगर स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क है या फिर लंबर गर्दन का पेन है या लो बैक पेन हो तो कितना ट्रैक्शन देना चाहिए, कब तक देना चाहिए। इसका आंसर है कि इनका कोई रोल नहीं है। इससे जो कारण है वो ट्रीट नहीं होता है। इसके कारण डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, ना ही बाहर जो डिस्क निकली रहती है वो अंदर आती है। ओनली टू कीप द पेशेंट इन बेड। ये भी एक लिटरेचर है जिसमें दिखाया गया कि इनका कोई रोल नहीं है लंबर ट्रैक्शन का। ये भी एक लंबर ट्रैक्शन का है और एक सर्वाइकल ट्रैक्शन का है। डू ऑल स्लिप डिस्क नीड एन ऑपरेशन? नो, सब में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर वो खुद से कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक हो जाते हैं। 10 ये भी एक लिटरेचर है जहाँ पे मैंने ऐड किया है ये दिखाने के लिए। लंबर डिस्क हर्निएशन इज अ कॉमन स्पाइन डिसऑर्डर दैट यूजुअली रिस्पॉन्ड्स फेवरेबली टू कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का भी एक बड़ा रोल है इसमें। इसमें भी एक लिटरेचर ऐड किया है कंजर्वेटिव जो मैनेजमेंट है उसको दिखाने के लिए। ये भी दिखाया है इसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का रोल दिखाया गया है। रेमेडी, तो what is the remedy for all these spine problems? The only remedy is learning of good posture and balance for a good spine health. एक अच्छा पोस्चर और बैलेंस सीखें जिससे कि हमारे स्पाइन हेल्दी रहे और ये प्रॉब्लम हो ही नहीं, प्रिवेंट कर ले हम किसी भी नेक पेन और बैक पेन को होने से। और साथ साथ वर्क स्ट्रेस रिडक्शन, जो वर्क प्लेस रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं वो भी कम हो। नॉन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट, ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट इसमें डाइटरी एडवाइसेस जैसे विटामिन डी लेना, कैल्शियम लेना और उनको डाइटरी सप्लीमेंट से पूरा करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी, वेट बियरिंग, मसल strengthening exercises to improve bone strength, इवन सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए, हाई कैफीन भी नहीं लेना चाहिए और एडिक्वेट सन एक्सपोजर भी होनी चाहिए। मोस्ट केसेस, जो ज़्यादातर केसेस हैं नेक पेन और बैक पेन के, 80 to 90% रिजॉल्व हो जाते हैं लगभग 6 हफ्ते में विथ और विदाउट ट्रीटमेंट। ये एक लिटरेचर ऐड किया है जिसमें दिखाया है कि अलार्मिंग फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं इससे रिलेटेड। तो ये बहुत सारे जो हिस्ट्री क्या क्या देते हैं और क्या क्या हम साइंस एलिसिट करते हैं वो दिखाया है। कुछ चीज़ें हैं जिस समय हमें एक क्लिनिशियन को जरूर दिखाना चाहिए। व्हेन टू विजिट अ क्लिनिशियन, व्हेन द विजिट इज अ मस्ट। तो ये है रेड फ्लैग साइन। जब पेन एट रेस्ट हो, नाइट पे रात को दर्द हो, नंबनेस और पैरेस्थेसिया इन पेरिनियम हो, बुखार आता रहता हो, जनरल सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं होते हो, वीकनेस का, पैरों में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, रीसेंट वेट लॉस की हिस्ट्री हो और बॉयल ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट हो, तब हमें ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट छोड़ के किसी क्लिनिशियन को जाके कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेशन लेना चाहिए और इवैल्यूएट करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। बहुत अच्छे तरीके से थैंक यू सर एक्सप्लेन किए हैं। आई होप स्टूडेंट्स को इससे बहुत कुछ मदद मिलेगा कि उनको किस तरीके से ई लर्निंग में किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके से कंप्यूटर पर काम करना चाहिए, किस तरीके से स्मार्टफोन यूज करना चाहिए, कितने देर यूज करना चाहिए और बाकी जो भी रेमेडीज आपने बताया, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट के लिए ये सब हेल्पफुल होगा। अगेन थैंक यू डॉक्टर साहब और सारे पार्टिसिपेंट्स को
Thank you. All the best. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank Yeah, you. thank you. Thank you so much.